Hi everyone, my name is Anurag and today with my friend Vinay we are here for shooting second video of our podcast and today our guest is Gunjan Agrawal. So a short intro about Gunjan is she is currently pursuing her industrial training at Deutsche Bank and she has done her articleship from GT which comes under like Big Six. So hi Gunjan. Hi Anurag, hi Vinay, hi everyone. So can you just give a small introduction about yourself? Maybe your CA journey. Sure. So I am currently pursuing my industrial training from Deutsche Bank in Pune. I completed my articleship from Grant Thornton in Corporate and International Tax from Delhi. I am originally from Delhi. Okay. So I completed my CA foundation and intern in first attempt, and I had my college ongoing with my CA intermediate. Okay. So I completed my college after my CA intern for 1.5 years, and I started my articleship from Grant Thornton, and now here we are. Okay. Nice. Yeah. परफेक्ट सो गुंजन हमारे पॉडकास्ट का एक स्पेशलिटी है हर गेस्ट को एक ओथ लेना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट सो शुड वी प्रोसीड Yes. So he told me the word before. मैं जो भी कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी. अभी फाइनल का अटेम्प्ट बाकी है. फाइनल का क्योंकि फाइनल का टाइम बाकी है. Yeah, right. So as you said, you are from GT. So how did you get in GT? And मतलब तुमने क्या वर्कआउट किया? रेज्यूमे वर्कआउट किया, नेटवर्किंग वर्कआउट किया, या फिर it was a shared luck? देखो नेटवर्किंग तो मेरी बिल्कुल नहीं थी क्योंकि मैं इंटरमीडिएट तक बिल्कुल घर में बंद थी, बाहर नहीं निकलती थी. तो आई हैड जीरो नेटवर्किंग. रेज्यूमे मेरा सही था बिकॉज आई वाज फ्रॉम ड्यू, आई वाज फ्रॉम अ गुड कॉलेज एंड I had worked on an internship before, so I had some experience. Like before what? Before my articleship, during my college, I did an internship at a startup company, at Okay. a startup CA firm, in which I had all exposure. तो मुझे थोड़ा experience था, plus मेरा college and first attempt and all, resume was fine. And yes, कितने टाइम का था ये आर्टिकल? that was only 3 months, but मेरे को exposure बहुत अच्छा मिला था वहाँ पे. अच्छा, so this thing was on your CV. Yes, so I had listed all the work that I did there. Plus मेरा GT में कैसे हुआ? मेरा एक फ्रेंड था जो GT में था, कॉलेज फ्रेंड. उसको हम लोगों को पता चला था कि एक वैकेंसी निकली है एंड मैंने उसको बताया था कि मुझे डायरेक्ट टैक्स में ही जाना है. Okay. तो हमें एक टीम मिली जहाँ पे हायरिंग हो रही थी और उसको बोला लगवा. उसने टीम में रेज्यूमे भेजा था, उसने चेज किया उनको कि इंटरव्यू के लिए. उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया, देन बाकी सब प्रोसीजर जैसे होता है वो नॉर्मल हुआ. Okay. Right. मतलब your interview got your reference got you till interview फिर normal process Yes. हुआ. Reference can only get you till interview. अच्छा. And one more thing, you had any attempts in foundation या फिर not attempts but did you defer your attempt? नहीं, I did not defer my क्योंकि ये attempt. क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन होता है बहुत लोगों का कि अटेम्प्ट के बाद कैन वी गेट इनटू बिग 6 या फिर बिग 4 वगैरह. सो You can, but बहुत ज़्यादा attempts तक नहीं लेते वो. 2-3 attempts is fine. They consider. 2-3 अटेम्प्ट्स इज फाइन. ओके. I have seen people with more attempts get into Big 4, Big 6, but they should have a good background, good experience, knowledge होनी चाहिए. Interview पे depend करता है. If you can get a reference and get an interview, तो फिर हो सकता है. ऐसा नहीं है कि होता नहीं है. परफेक्ट. तो GT में एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब सबका ड्रीम होता है बिग 4 जाना. GT एंड वीडियो Big Six जाना. Big 6 या भाई Big Big 4 6. मत करो तुम अभी. हाँ Big 6 ओके Big 6. मैं तो फिर हो गया भाई. ठीक है. Big 6 में कैसा था एक्सपीरियंस? ग्रैंड थॉर्टन. अच्छा था, मतलब काम इज सिमिलर इन बिग 4 बिग 6 ऐसा नहीं है, बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था. चुप रह. मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था. इंटरनेशनल टैक्स का था मोस्ट वर्क. मेरे पास कंप्लायंस बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था, मतलब उसका भी किया है, बट मोस्टली इंटरनेशनल टैक्स का था. तो मुझे मज़ा आता था. पूरे बैठ के एक्ट्स पढ़ रहे हैं, केस लॉस पढ़ रहे हैं, पूरा घूम के एनालिसिस निकालना है. मुझे पसंद थी वो चीज़ें. अच्छा. So like what was your domain exactly? क्योंकि आपने international tax भी बोला, like it comes under transfer pricing, right? नो इट डज नॉट. International tax then? इंटरनेशनल टैक्स में बाकी जैसे इंटरनेशनल टैक्स अदर देन टीपी वाज अ सेपरेट डोमेन इन जीटी. Okay. TP is transfer pricing. यस, ट्रांसफर प्राइसिंग इज अ सेपरेट डोमेन इन ग्रैंड थॉर्टन. तो माइन वाज इंटरनेशनल टैक्स. उसमें जैसे इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी के साथ भी ट्रांजैक्शंस किए, उसको एनालाइज करेंगे टीपी उसका क्या प्राइस होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस होना चाहिए.
आर्म्स एंड प्राइस हमको टिकट निकाल के देते थे। अच्छा। उसके बाद जो फॉर्म्स वगैरह की फाइलिंग होती है उनको हम्म। किस तरह से वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करनी चाहिए, अच्छा। क्या क्या उन पे ऑब्लिगेशंस आएंगे इन टर्म्स ऑफ लिटिगेशंस एंड ऑल हम्म। लीगल फॉर्म्स, हम्म। वो सब हम देखते थे। अच्छा, सो इट वाज इंटरनेशनल टैक्स प्लस थोड़ा सा कॉर्पोरेट टैक्स भी। यस, कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल। ओके, नाइस, यू गॉट गुड एक्सपोजर। रिटर्न फाइलिंग वगैरह कंप्लायंस काम किया है? किया है, बहुत ज्यादा नहीं किया। यार इनके पास इतने क्लाइंट होते हैं, अपने ऐसे नहीं, सादे पीजीपी वगैरह। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड लाइक फिर यही रीजन था आपका लाइक चूज करने का दिस डोमेन, यू गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड कॉर्पोरेट एक्सपोजर एज वेल फॉर टैक्सेशन। नाइस, ओके। जनरली लोग स्टार्ट ऑडिट लेते हैं ना, सो तूने सेफ ऑप्शन छोड़ के बिल्कुल नहीं था ऑडिट का उतना। ऐसे स्टिग्मा लगा हुआ है ना कि लेट नाइट काम होता है, बहुत ज्यादा काम कराते हैं, टाइम नहीं मिलता पढ़ाई का। मेरा मन हट गया था ऑडिट से, अच्छा। डीटी का ही मन था। बट जनरली अपन एक्सपेक्ट करके आते हैं कि अपने को नहीं कॉर्पोरेट लाइफ मिलेगी, मतलब प्रॉपर टाइमिंग रहेगा, स्मिट जैसे नहीं कि रात को 2 बजे तक बीटा उधर भी ऐसा ही होता है। सेम एक्सपीरियंस आपका उधर ऐसा? भी ऐसा ही होता है, ऐसा कहीं हर जगह ऐसा ही होता है। अच्छा। ऐसा ही होता है। एक्सेप्ट कर लो। ओके, सो जैसे हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, लाइक एवरीवन वांट्स टू गेट देयर, सो द फर्स्ट स्टेप इज इंटरव्यू, राइट? सो कुछ इंटरव्यू के बारे में बता, लाइक व्हेन यू गेट इनटू इंटरव्यू तो क्या था, मतलब सीन क्या था, राउंड्स कितने हुए हैं, या फिर देखो इंटरव्यू में एक्चुअल क्वेश्चंस कैसे थे, लाइक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे, लाइक बुक में का ये इसका ये बता दो, या फिर केस बेस्ड थे वैसे? एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग इंटरव्यू लाइक? तो ठीक है, आई हैड 2 राउंड्स, 2 or 3 राउंड्स आई थिंक। फर्स्ट वाज जो कंसल्टेंट्स ने लिया था मेरा, ओके। टेक्निकल पार्ट पे क्वेश्चनिंग की थी और फिर राइटिंग में उस पे की थी। सेकंड या थर्ड राउंड में मुझे एक बार ऑनलाइन हुआ था, एक बार ऑफिस बुलाया था प्रॉपर फेस टू फेस डिस्कशन के लिए। अच्छा। तो फर्स्ट राउंड में कंसल्टेंट्स ने लिया था, वो पूरा टेक्निकल था, पूरा डीटी के जो मतलब इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट को तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि उसको बहुत एक्सपीरियंस होगा या वो बहुत ज्यादा केस स्टडीज बता पाएगा। Right. तो उन्होंने मुझे Theoretically में पूछा। मोस्टली वही पूछते हैं, हर इंटरव्यू में बहुत जगह इंटरव्यू दिया है, ओके। मोस्टली वो लोग वही पूछते हैं जो तुमने इंटर में पढ़ा है। तो यू शुड बी थरो विद द इंटरमीडिएट सिलेबस। Okay, so this is a good point. Like, if you want to get into international taxation, this domain, तो आप मतलब बुक का भी पढ़ के जाओ, इंटर का इट्स सफिशिएंट, राइट? तो मैंने मतलब डायरेक्ट टैक्स के लिए ही मैं अप्लाई कर रही थी पोस्ट हम्म। फॉर्म्स, तो सब में ऐसे ही पूछते थे कि इंटरमीडिएट का सिलेबस हम्म। मैं बुक से ही पढ़ के जाती थी, जो समरी बुक थी, हम्म। प्लस इंटरनेशनल टैक्स का जो बेसिक्स होता है, जैसे ट्रीटीज क्या हम्म। होता है, क्या मतलब कैसे एनालिसिस, थोड़ा बहुत बेसिक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है, कौन किस किस टाइप की होती है, उनका मीनिंग, बस वो बेसिक इंटरनेशनल टैक्स पता होना चाहिए कि क्या होता है। Got डीप it. में एक्सपेक्ट नहीं करते, डीप में एक्सपेक्ट नहीं करते, डीटी right? डबल ए क्या होता है। Yes. देख भाई, प्रॉपर पढ़ाई करे तो फिर बिग 4 बिग 6 मिलता है। मेरे ऐसे लोग हैं जो एक दिन पहले रिवीजन के रिवीजन लेक्चर देखते हैं, उनको फिर मिल जाए, वो भी वही करते हैं। मैंने हम भी वही किया था। करते हैं वही भाई। करते हैं। अरे क्या बात रिवीजन है। वीडियो देख कर जाओ, बस हो गया हाँ, preparation। मेरा अगले दिन इंटरव्यू था, मैंने एक दिन पहले बीबीसी की पूरी प्लेलिस्ट कर ली थी इंटर की कि क्या क्या पूछना है। अपने को तो कुछ आइडिया नहीं ना हाँ, क्या पूछना इंटरव्यू होगा। के लिए। मैं तो टीडीएस टीसीएस वो एग्जाम के लिए छोड़ के गई थी चैप्टर, बट इंटरव्यू तो पूछेंगे, वो तो नहीं पूछते हैं। हाँ, तो तो वो नहीं मैं पूछा। पढ़ी थी बैठ के पूरा हाँ। चैप्टर दोबारा, अच्छा। स्टार्टिंग से ओके। पूछा था। ग्रेट। सो स्टाइपेंड वगैरह क्या रहती है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, मतलब जनरली? जीटी में फर्स्ट ईयर 16,000, सेकंड ईयर 20,000। तेरी कितनी है भाई? पीडब्ल्यूसी 16 है? यस। ओह, 16 इज गुड यार। मैं बोलता भाई, मेल करना पड़ेगा मेरे को। तो थोड़ी सी कम है भाई, थोड़ी सी 19-20 का फर्क है। 19 का फर्क है। बट जनरली कैसा रहता है वर्क लाइफ बैलेंस होगा ना? मेरे ऑडिट के फ्रेंड्स हैं, उनकी तो हॉरिबल लाइफ है मतलब। ऑडिट में थोड़ा है हाँ, बट टैक्स में जब सीजन होते हैं, डेडलाइंस होती है, तब ज्यादा रहता है। बाकी दिन थोड़ा लाइट रहता है, मतलब आइडियाज इनमें तो रहता ही है। बाकी एडवांस टैक्स की डेडलाइंस है, टीडीएस की डेडलाइंस है, कोई लिटिगेशन की तुम्हारी क्लाइंट की ड्यू डेट्स आ रही है, उन पे थोड़ा हेक्टिक रहता है और रात तक बैठना पड़ता है। मैं तो डेली बेसिस पे बैठती हूँ। तो मतलब अगर किसी को इतना भी बस काम 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 ही नहीं सीखना है, दे वांट सम टाइम फॉर अदर थिंग्स एज वेल, जो भी उनको कुछ लाइफ में करना है विद देयर आर्टिकलशिप, सो अदर देन स्टैट ऑडिट या फिर इंटरनल ऑडिट, दिस डोमेन्स दे शुड लाइक लुक फॉर, राइट? I
don't think you should just keep chasing audit. It is a good domain, हाँ. no doubt. But और domains भी अच्छे हैं. If you have interest in that, मतलब interest है तो हाँ आपको इंटरेस्ट अच्छा है तो लगेगा. हाँ आप चले जाओ वहाँ पे क्योंकि एक्सपोजर मिलता है बट हम्म. if you want to do other things in life you should like consider these other domains as well. International tax is one of the good domain जहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है. जॉब के अपॉर्चुनिटीज भी आगे होंगे फिर. हाँ, वो तो हर जगह होती है. आपके इंटरेस्ट पे आपको क्या पसंद आ रहा है वो करो. ओके नहीं पता तो ट्राई मार लो. हाँ नहीं पता है तो उसमें नहीं थोड़ा बात सा हो मिल जाता है. वो समझ जाता है. और ऐसे भी सही है हमारे इसमें कि you should do your articleship from audit just to know why you shouldn't do job in audit. Oh. ऐसे मतलब आर्टिकलशिप कर लो बट फिर समझ आ जाएगा कि करने की जरूरत नहीं है अभी वो बस खत्म. पोस्ट क्वालिफिकेशन तो यार मतलब हाँ, जिनका article Audit से वही भी करते हैं. अच्छी वो चीज करते है हैं. कि उससे ना थोड़ा आपका एक्सपोजर खुल जाता है. आप हाँ, range बड़ी हो कहाँ जाती जा है. सकते हो उसके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं ऑडिट में. हाँ आपकी तो मैंने सुना कि रेवेन्यू भी डॉलर्स में होता है मतलब यूएस के क्लाइंट्स मेरा नहीं होता. हाँ उनके होता होगा. मेरा रुपीस में आता था. ठीक तो है. पीएफ अगर वैसा कुछ कटता है क्या नहीं. डायरेक्ट स्ट्रेट 16,000 इन योर बैंक. Exemption के ऊपर भी नहीं है. कुछ नहीं करता. अपना किसे होता है आर्टिकल्स का नहीं होता. Just asking curious. अच्छा. Okay, and like, did you start like studying during your articleship? हाँ, I started studying during my college time. But वो क्लास 1.5 साल तक चली रही थी. College by college College I mean graduation BCom. हाँ, yes. okay. तो नहीं एक सेकंड when you started articleship तो पढ़ाई कितनी हो गई थी फाइनल की? बहुत ज्यादा तो नहीं हुई थी. मैं 1.5 साल तो सेम ही क्लास देख रही थी. Maybe we are expecting a rank कर दें. इतना भाई मेरी 6-7 महीने हो गए मेरे को articleship स्टार्ट करके. Even I haven't started studying. सभी के वही हाल है. सभी के वही हाल है. आप प्रेशराइज मत हो ना. इसने थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा कर लिया है. हाँ. Maybe Extra नहीं किया, rank वो करना वैंक चाहिए था. मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि वो खिंचता ही रहा. 3 बार तुमने क्लास एक्सटेंड करेंगे. अरे बाप रे. Nice. ठीक है. नाइस. So you started studying during your articleship. कह सकते हैं. Yes. तो अब तक तो हो गया होगा फिर. Same, we are all on the same We page. are all on Don't the worry. same track. एंड और एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने बहुत सारे लोगों से पूछा है लाइक डू यू गेट लाइक वर्क फ्रॉम होम ऐसा कुछ? हाँ वो इशू नहीं रहता. मतलब जस्ट ऑडिट में थोड़ा होता है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस ज्यादा करना पड़ता हाँ है. राइट. बट डायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि क्लाइंट से डेटा ही आना होता है. वो आप वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम ऑफिस मेरा बहुत उसका दिक्कत नहीं हुआ मुझे कभी. मुझे चाहिए होता था तो मैं ले लेती थी. मैं अपनी मर्जी से ऑफिस जाती थी नहीं जाती थी. मेरी टीम भी ज्यादा नहीं आती थी. वीक में 1-2 बार. बट उसकी मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई. Big 4 Big 6 का ये चीज अच्छी है. हाँ वो तो है. मतलब आपके मैनेजर वगैरह काफी नहीं चिल चिल थे. उनको बस काम चाहिए. भाई सबको मिले ऐसे मैनेजर्स. अरे सबका ऐसे रहता है. मतलब क्योंकि डेटा क्लाइंट से आना होता है ना. हमको कुछ हाँ. ऐसे क्लाइंट बेस पे नहीं जाना है. ऐसा कुछ नहीं होता. अच्छा. हाँ इसी हाँ वो रिगार्डिंग. भी फैक्टर है. वो फैक्टर है. हाँ. क्लाइंट प्लेस पे नहीं जाना तो फिर ऑफिस आके क्या कर रहे हैं? इनकम टैक्स right. ऑफिस जाना है तो आना पड़ेगा ऑफिस. हम्म. वो कुछ कभी कभी होता है ना बट रेगुलर वो जो क्लाइंट इंटरेक्शन ऐसे 1-to-1 होता है क्या मतलब कि मेल में ही खेलते रहते हो? मेल में ही क्या? हाँ दिस इज आल्सो ग्रेट क्वेश्चन. क्लाइंट इंटरेक्शन होता है? क्लाइंट इंटरेक्शन कॉल्स पे होता है. चैट पे होता है. ऐसे डायरेक्टली फेस टू फेस मेरा तो नहीं हुआ. अच्छा. हाँ. मतलब इंटरनेशनल टैक्स तो आई थॉट फॉरेन के क्लाइंट्स होते हाँ, वही बोला ना. बेटर इंटरेक्शन है बट ऐसे इंटरेक्शन नहीं हुआ ना. लाइक फेस टू फेस इन पर्सन नहीं हुआ कभी नहीं, बट नहीं. वर्चुअली हुआ है. हाँ वर्चुअली हुआ. Virtually हुआ है. वर्चुअली मीटिंग्स वगैरह सब होता है. हम्म. बस फेस टू फेस जाने की जरूरत नहीं पड़ती. जरूरत नहीं पड़ती. बता रेगुलर देते हैं, का data रेगुलेशन देते है. हैं. हाँ. सो इसी के रिगार्डिंग कोई फन एक्सपीरियंस था क्या क्लाइंट के साथ टीम के साथ कुछ ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस आर्टिकलशिप का एक साल जीटी? हाँ हम लोग ऑफ साइट पे गए थे. हाँ ऑफसाइड होती है. पालमपुर. क्या? वो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना द स्टोरी ऑफ पालमपुर. तो हमें हाँ, पता चला पालमपुर. कि वो जगह रियल है. अच्छा. पालमपुर क्या what is एक्सपीरियंस? पालमपुर? पालमपुर इज अ प्लेस इन स्टेट बोल पहले मेरे को पालमपुर कुछ नहीं पता. उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश. एक बार सर्च करो. ओह पालमपुर एक्चुअली ना 2 जगह है. गुजरात में भी पालमपुर है. नहीं पहाड़ों पे है. पालमपुर साउंड्स लाइक गांव बट ठीक है हाँ. फाइन गाँव है, यू कैन गाँव. शेयर योर गाँव है. एक्सपीरियंस. बट ऐसे जैसे इतने सारे पहाड़ हैं. हम्म. बीच में एक प्रॉपर्टी ली थी हम लोगों ने. वहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं था.
ओके। तो हम लोग एक सेक्लूडेड प्रॉपर्टी जिसमें 15 मिनट चल के रोड तक आना पड़ता था, हाँ। पहाड़ों पे चढ़ के, हाँ हाँ वैसा जगह पे थे, बिल्कुल हाँ। सेक्लूडेड, और हाँ। रात में इतना डरावना लगा था सब कुछ, हाँ। बट बहुत मजा आया। उसमें पूरी टीम थी, तो 3 दिन का था, आई थिंक 2 या 3 दिन का था, बहुत मजा आया था उसमें। नहीं, ये पर्क्स है। जनरली मिड साइज में इतना नहीं करते, मतलब इतना नहीं कि सीधा आपको फ्रॉम महाराष्ट्र दे टेक यू टू उत्तराखंड एंड फिर मजे भाई करेंगे। विद इन द स्टेट विद इन द सिटी होता है इतना नहीं जाते हाँ बट वहाँ इतना ज्यादा नहीं होता मिड साइज होम्स में बट वहाँ पे हर साल फिक्स था कि एक ऑफ साइड होती थी। हाँ, एक ऑफ हाँ, अच्छा fix था, हर अच्छा year पर fix ईयर होती थी, ओके। हाँ। तो इस बार जैसे पालमपुर गए थे, तो उसमें हम बीच बीच में घूमने भी गए थे, रात में ऐसे कैंप बॉनफायर करके मस्त पार्टी वार्टी हो रही है, दारू वारू आई हुई है, जो कि मैंने नहीं पी थी, बट ऐसे सब लोगों को एक गाना गाना था, सब गाना गाओ माइक पे, अच्छा गंदी आवाज हो तो गंदी में गाओ, नाच रहे मस्त मजा आता उसमें, वो that was इट्स nice। पूरा कंपनी स्पेंड करती है राइट? नहीं पूरा नहीं, मतलब हाँ कंपनी कुछ अमाउंट देती है, इफ यू वांट टू स्पेंड थोड़ा ज्यादा, तो हम लोगों ने थोड़ा अपने एंड से भी कॉन्ट्री करके बजट बढ़ा के फिर गए थे। नाइस नाइस पर्क्स ऑफ बीइंग इन बिग बिग सिक्स। सिक्स बिग फोर मत भाई तब से बिग फोर ही बोल रहा राइट राइट सो कुछ आपकी टीम के साथ मतलब एक्सपीरियंस कोई कुछ खराब एक्सपीरियंस वगैरह या फिर सब कुछ चिली था? नहीं इतना चल तो किस टाइम में था ऐसा तो था, काम वाम चलता था, वीकेंड्स पे बैठते थे, रोज एक्स्ट्रा बैठते थे कि 2-2 बजे तक। एक दिन हमारी लगातार 4 छुट्टी आई थी, 4 छुट्टियों में मैंने काम किया था पूरा पूरा दिन, तो वो सब होता था, बट ऐसे कभी स्ट्रेसफुल वैसा नहीं लगा कि क्या क्यों कर रही हूँ मैं ये, ऐसा लगता था कि ठीक है मेरी लर्निंग हो रही है, मैं करती हूँ। मुझे अच्छा तो मतलब इट वाज फन इवन इफ आपका एक्सटेंड हो रहा था, मेरे साथ मैनेजर बैठे हैं, कॉल पे बैठ के थोड़ी बातें भी कर रहे हैं कि करना तो है, कर लो, बातें भी करेंगे ही, तो ऐसे मुझे मन करता था करने का, ऐसा नहीं था कि मैं जबरदस्ती करती थी। अच्छा सो जो मिथ है कि बिग फोर बिग सिक्स में बहुत दिन रात काम होता है एंड इट्स वेरी हेक्टिक, तो वैसा नहीं है, इट कैन बी फन, मतलब काम तो है होता है, बट यू हाँ। नीड टू स्टार्ट टू लिव विद इट, एक्सेप्ट कर लो है। ये तो आप बुरा बोल रहे हो बहुत। आपको जीटी नहीं जाना शायद वापस अब? नहीं मुझे ऐसा नहीं है, मैं चली जाऊंगी मेरे को आया तो, ओके बट ऐसा नहीं कि आप ऐसे सोचते हो अरे ये क्यों करा रहे हैं, अरे एक्स्ट्रा क्यों करा रहे हैं, अगर आप थोड़ा नहीं करोगे तो आप आई थिंक सीख नहीं पाओगे। जैसे कि मैं बताती हूँ, एक बार हुआ था कि थर्सडे को काम आया था which was related to corporate law which was not even my domain, हम लोग डायरेक्ट टैक्स में थे, हम थोड़ा सा कॉर्पोरेट लॉ का काम था। अब मेरे मैनेजर को कॉल आया कि आपको करना है, मैंने कहा एडवाइजरी था जो कि इंटर्न्स को नहीं मिलता, मुझे एडवाइजरी मिल रहा था, लाइक मुझे करना तो है, कहते कि ये ट्यूसडे तक मिलेगा, और आई थिंक फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन छुट्टी थी, तो मैं कहा ठीक है लूंगी। मैं 2-3 जो कि उन्होंने कहा था उनको, मतलब थोड़ा टाइम अंडर एस्टिमेट किया था हम लोगों ने कि कितना लगना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा कॉर्पोरेट लॉ सेक्शन 68 था आई थिंक बायबैक का, वो पूरा पढ़ के एनालाइज करना था, वो पढ़ के एनालाइज करके क्लाइंट को उसके बेसिस पे एडवाइजरी इशू करनी थी, एडवाइजरी प्रिपेयर करनी थी पूरी। अब मैं पढ़ने बैठी, मैं तो भूल गई सारा, और मैं कंसल्टेंट को कॉल करके आ जाओ प्लीज आ जाओ कॉल पे, उनका काम भी नहीं था वो मेरे साथ कॉल करके मेरे को सेक्शन सारे दोनों बैठ के एनालाइज कर रहे हैं, अब उसको डायरेक्ट टैक्स से लिंक कर रहे हैं, उसके बेसिस पे एडवाइजरी बना रहे हैं, क्लाइंट से लिंक करके पूरा कर रहे हैं, और मेरे एएमडी इन्वॉल्व थे उसमें, वो करके हमने ट्यूसडे तक पूरा कर दिया। तो मतलब हुआ दैट वाज कि ठीक है मैंने 4 दिन छुट्टी में भी काम किया, बट दैट वाज अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट कि अरे भाई मुझे अभी इस चीज भी आती है, हाँ तो मुझे उसमें मुझे मजा आता था ना एनालिसिस एंड ऑल में, अच्छा तो मुझे अच्छा लगा था मुझे। हाँ जनरली क्योंकि कंसल्टिंग नहीं देते, क्योंकि वो डायरेक्ट क्लाइंट ओरिएंटेड होता है, तो कंसल्टिंग में नहीं देते राइट। बट एडवाइजरी में बहुत नॉलेज लगती है जो कि इंटर्न्स को नहीं होती है, क्योंकि डीटी ट्रांसफर प्राइसिंग जीएसटी इन सब में सीखने में ही 6 महीने लग जाते हैं कि करना क्या है मुझे, कंप्लायंस पार्ट राइट, कंप्लायंस सीख जाते हैं, कंप्लायंस हाँ कोई ना कंप्लायंस कैसे करना है वो सब करने के लिए 6 महीने लग जाते हैं, काम सीखना, हाँ केस लॉज कैसे पढ़ने हैं, कैसे ढूंढने, कौन से रेलिवेंट है, वही नहीं समझ आता। उन्होंने बोला केस लॉज लेकर आओ, तो कह रही हूँ ये कैसे आएगा, कहाँ से ढूंढूं, क्या ढूंढूं, फिर वो समझ आया, फिर तुमने कुछ सर्च किया कि इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा, तो
जस्ट फॉर द मतलब आपके बैकग्राउंड के लिए केस लॉज मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई वी नीड बैकिंग ऑफ समथिंग सो वी हैव टू गिव केस लॉ रिगार्डिंग दैट मतलब आप जो भी पेपर सबमिट कर रहे हैं तो उसमें यू हैव टू ऐड केस लॉज भी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दूं कि अपने इंटर में कैपिटल गेन का एक चैप्टर था जिसमें मंजुला शाह का केस लॉ आता है। हाँ राइट, मंजुला शाह का, तो वैसे आपको एडवाइजरी पार्ट में देना होता है कि हमने इसका आंसर इस केस लॉ पे रेफरेंस से लिया हुआ है। Right. बट दैट सिर्फ एडवाइजरी में नहीं है, सिर्फ कंप्लायंस भी कर रहे हो, आपको नहीं पता कि इसको मैं किस तरह से Right. करूँ, तो उसके लिए आप पूरे केस लॉज इज वेरी बेसिक थिंग जिसके लिए आप रोज ढूंढ रहे होते हो। कुछ भी स्टैंड लेना है केस लॉज ढूंढने पड़ते हैं। यू नीड सम बैकिंग। हाँ, बैकिंग कि तुम किस बेसिस पे ये स्टैंड ले रहे हो। बट यू नो गुंजन, इट्स गुड कि यू हैव दैट लर्निंग एटीट्यूड। मुझे एक बार ना आईसीआई में एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर ने बोला था कि आर्टिकलशिप गुड या बैड नहीं होती, आर्टिकल गुड या बैड होता है, कि उसका कितना एटीट्यूड होता है कि कितनी चीजें मैं सीख पाऊँ। सो दैट्स वेरी गुड। ग्रेट ग्रेट। सो और एक चीज था कि ट्रांसफर केसेस अलाउ होते हैं क्या जीटी में? हाँ क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, सब अलाउड होता है, मतलब ट्रांसफर केसेस ऐसे नहीं कि 1 साल का, 5-6 मंथ्स का ट्रांसफर ले लेते हैं। 5-6 मंथ्स के बाद थोड़ी दिक्कत आती है, उसमें भी 5-6 मंथ्स तक भी थोड़ा आपको रेफरेंस लगाना पड़ता है। अच्छा, तो आपको इंटरव्यू ले लेते हैं एंड थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो तुमने 5-6 महीने काम किया वो आना चाहिए। अच्छा मतलब इन व्हाटएवर डोमेन दे आर वर्किंग थोड़ा तो आना चाहिए ना कि तुम क्या हाँ, कर रहे थोड़ा तो हो। आना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, अच्छा तो मतलब ले दिस लेते आल्सो हैं, गुड। ऐसा नहीं है। हाँ, गुड पॉइंट कि ले लेते हैं, आप ट्राई करो। लाइक अगर आप कोई फर्म में हो 5-6 महीने हो गए एंड यू थिंक यू कैन गो, तो ट्राई करने में क्या जाता है। दे डू टेक ट्रांसफर केसेस राइट। राइट। You can try. And one more thing, like you left GT after 1 year and you joined DB, like Deutsche Bank, for your industrial training. So like what was the reason that you left GT and joined for industrial training? Because everyone is curious, right? मतलब industrial training करें ना करें। हाँ, मेरे को तो मैं भी श्योर नहीं थी because I was getting good work, मुझे पसंद आ रहा था। बस वही था कि मैं सिर्फ टैक्स में थी, मैंने अभी तक बस टैक्स ही किया है। जो मैं 3 मंथ्स का इंटर्नशिप करी थी उसमें भी द पार्टनर्स वर टैक्स डोमेन के, तो उसमें भी टैक्स का काम ज़्यादा रहता था। मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना था, बस कि मुझे देखना है कि और में कैसा होता है। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं बाद में दोबारा टैक्स ट्राई कर लूँगी। अच्छा, you started with tax. अच्छा, you started with tax, exposure चाहिए था, so you thought of industrial training. Yes. And आपको मिल भी गई DB में, Deutsche Bank हाँ, में। नहीं बट वो पूरा ढंग से अप्लाई किया था मैंने, अच्छा, प्रॉपर्ली करना था मुझको। अच्छा करना था, तो you were हाँ। prepared पहले से। हाँ, तो मेरे को ट्राई करना था कुछ और कि टैक्स से हटके मुझे देखना है if I like it then good, इंडस्ट्री में जाना है कि नहीं, हाँ। वरना सीए फॉर्म इज ऑलवेज देयर। वरना वापस आ हाँ, सकते वरना हैं। आई ट्राई टू गो बैक इनटू सीए फॉर्म, ऐसा था। अच्छा, तो एक्सपोजर मतलब वही रीजन था कि एक्सपोजर, ऐसा हाँ, बस वर्क मुझे- कल्चर वैसा कुछ नहीं था। बस मेरे को ट्राई करने का चुन था कि करना करके तो देख लूं क्या है। ओके, फेयर इनफ। Yeah, so और पैसा भी मिलता है। कितना होता है पैसा, कितना होता है इसमें इंडस्ट्रियल में? आप कमा सको। नहीं, अभी नहीं बोलेंगे अपन, विल कीप हाँ, दिस फॉर yeah. some other podcast. Some other podcast, But yeah. पैसे तो बहुत होते हैं, लाइक आप इमेजिन कर लो 2-3 टाइम्स तो आराम से होते हैं पैसे। आराम से आराम से। एंड ये तो डॉइच बैंक में तो हाँ भाई। बट वेट करिए नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए, हम Yes. उसमें फिगर्स डिस्कस करेंगे, क्यों गुंजन? श्योर। सो गुंजन, वन पीस ऑफ एडवाइस दैट्स योर सीनियर्स गिव यू ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप, कि उससे आपको बहुत हेल्प हुई आर्टिकलशिप में। मैं तो रोज ही सीनियर्स के साथ ही बैठी होती थी, तो जैसे उनको देख के मुझे लगता था कि ठीक है, इतना भी क्या ही है जो कि अगर तुम्हें लीगल पे काम करना पड़ गया तो क्या हो गया, ठीक है कर लो, कुछ सीखने को मिल रहा है तो कर लो। ऐसे उनका एटीट्यूड वैसा था कि दे वर लाइक चिल, ओके, वो ऐसे वो नहीं दिखाते कि अरे क्यों करना पड़ रहा है इनके काम वगैरह। अच्छा, तो उनका एटीट्यूड भी लर्निंग वाला ही था उन सबका। वो जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, वो मुझे आंसर नहीं देते थे, वो मुझे आते थे इसमें ढूंढ गया। अच्छा, तो मैनेजर को भी मैं ऐसे बताती थी जाके कि ये प्रॉब्लम्स है, वो मुझे आंसर नहीं देते थे, मुझे बोलते थे कि ये सेक्शंस हैं, पढ़ के आ फिर डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, मैं पढ़ के अपना एनालिसिस लेके जाती थी, फिर वो मुझे पूरा बताते थे कि ठीक है ये तुम गलत बोल रही हो, ये सही बोल रही हो, ये होना चाहिए।
फिर हमारा प्रॉपर डिस्कशन डिबेट बैठता था उस पर। अरे नहीं आप गलत बोल रहे हो, मैं सही बोल रही हूँ। इनकम टैक्स में राइट होता है। मेरे साथ वैसा हुआ है, लाइक सेम सीन। मैं जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन लेके जाता था, so they don't expect a question out of you. They expect कि you don't come with a problem उनके पास, like you come with a solution। या फिर ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम के लिए मैंने I have taken this steps, हाँ। इतना मैंने किया है, अब मेरे को बताओ आगे क्या करना है। हाँ। They want this approach। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है एंड हाँ। they are कि भाई ये क्या करना है बता दो अभी, तो वो ऐसे सामने से कभी नहीं आंसर देंगे, राइट? तो तुम उनको चाहिए कि तुमने अपने एंड से ट्राई किया, उनको भी पता है तुम आर्टिकल हो, बहुत ज्यादा तुमको भी नहीं आता होगा, और बिल्कुल बेसिक स्टेज पे हो जिसमें तुमको कुछ नहीं आता, तो उनको पता है, बट दे वांट यू टू ट्राई एटलीस्ट। अपना ट्रायल क्या समरी लेकर आओ, हाँ। ये ट्राई करा मैंने, ये हाँ। काम नहीं किया, अब आप बताओ कि आप मैं क्या बताओ। करूं। अरे। हाँ, ये चाहिए ये होगा। चाहिए। Yes। मैंने उसी के लिए ये कोट लिखा है ऊपर, यू आर अ चश्मा नहीं कंसल्टेंट। लगा। मैं बोल देता हूँ, you are a consultant, you should always go with the solution, not the problem. Yes. You don't always have the solution, but you should at least try. Try. ओके सो कमिंग बैक, जनरली ना आर्टिकलशिप में लगता है कि यार मैंने डोमेन में नहीं करना चाहिए था, मैंने ओवरऑल एक्सपोजर देना चाहिए था। सो एक साल के बाद तेरे को लगा था कि नहीं यार मिड साइज में जाना चाहिए था, ओवरऑल एक्सपोजर मिलता, जीटी में क्यों गई मैं, एक साल में सिर्फ टैक्स ही सीखा, नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं, क्योंकि मैंने स्मॉल फॉर्म में काम करके देखा, मेरे को पता है कि वहाँ कैसा रहता है। मेरे को मन था ब्रांड नेम लेने का एंड वैसा स्पेशलाइज्ड एक्सपोजर, कुछ ऐसा अच्छा सा काम करने का जिसमें थोड़ा रिकग्निशन भी मिले। हाँ। तो जीडी में ऑब्वियसली ब्रांड नेम आ जाता है, तो थोड़ा मिलता है रिकग्निशन। सो आपका स्टार्टिंग से था कि जॉब पर्सपेक्टिव से कि प्रैक्टिस वगैरह के लिए आप सर्च करोगे क्या फिर भी डोमेन वाइज? मुझे अभी पता नहीं है। आई वुड सजेस्ट फॉर प्रैक्टिस कि आप डोमेन वाइज ही जाओ, अगर क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको सब काम आना चाहिए, बट आपको प्रैक्टिस में किसी चीज में एक्सेल करना है, उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत सी फर्म्स ऑलरेडी है जो वो सारे काम कर रही हैं। आपको किसी चीज में अपना नाम ऊपर करना है, तो उसके लिए आपको नॉलेज ज्यादा चाहिए उसकी। तो एक चीज में स्पेशलाइजेशन कर लो। Yes। तो आप ऐसे लाइक मुझे जो समझ आता है कि अगर आपको एक चीज का स्पेशलाइजेशन है, then you can find other people जो और डोमेन्स में स्पेशलाइज्ड है। आप लोग अगर साथ में फर्म खोलते हो तो आपको अच्छा स्पेशलाइजेशन वाले लोग मिलते हैं उसमें, rather than you doing all the work कि मैं जीएसटी कर लूँ, ऑडिट कर लूँ, डीपीटी कर लूँ। सो अनुराग आपके पास कुछ और क्वेश्चंस? नहीं सर, बस आई एम डन। लाइक आप रैपिड फायर एक ले सकते हो। श्योर। सो हमने एक सेगमेंट चालू किया है एज फास्ट एज, सो इट्स लाइक अ क्विक रैपिड फायर राउंड। तो शुड वी स्टार्ट? या सो ग्रैंडडॉटर और डॉइचे बैंक, व्हिच विल यू चूज? फिलहाल डॉइचे बैंक। 109 बाकी है। ग्रेट। रीडिंग बुक्स और वाचिंग वीडियोस? वीडियोस। वीडियोस, बुक्स ने? नहीं। Introvert CA with a strong technical skills or extrovert CA with strong communication? Extrovert CA always. Extrovert CAs. Okay. Job or practice or business? फिलहाल जॉब। Job. अभी के लिए जॉब, अब क्योंकि मेरा माइंडसेट ऐसा ही है कि ब्रांड में लेना है। और तो अभी मैंने बिजनेस पर्सपेक्टिव से कुछ सोच नहीं रखा कि मुझे करना है नहीं करना है, तो फिलहाल जॉब। Great. So thank you so much Gunjan for this podcast. And आपने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बता दिया कि क्या डोमेन में होता है एंड क्या क्या चीज़ें होती है इन कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो या दैट्स इट फॉर द पॉडकास्ट। एंड आप लोगों के लिए मैंने रिसोर्सेज वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है, सो आप वो सब यूज़ कर सकते हो। उसमें मैंने रिज्यूमे वगैरह भी अटैच किया है गुंजन का, सो आप वो सब देख सकते हो। एंड गुंजन के लिंक्डइन कॉन्टैक्ट्स भी आपको, नॉट कॉन्टैक्ट, लिंक्डइन मिल जाएगा। सो यू कैन रीच आउट टू हर, आपको जीटी में रेफरेंस लगाना है तो। शी विल हेल्प डेफिनेटली, राइट? Yeah, sure. And thank you Anurag and Vinay for calling me, and it's great that you are shooting these series to help CA students. And मुझे बोला था कि जल्दी करो ये वाला शूट क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको जरूरत होगी, तो which is good. I like their passion. एंड आप लोगों के लिए और एक चीज़ है कि कुछ भी फीडबैक वगैरह है ना, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, अच्छा बुरा है जो भी आपको लगा, वी आर एक्सेप्टिंग ऑल द फीडबैक्स। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।